Okay, so today's class is magnitude and direction of the resultant of two vectors A and B in terms of their magnitudes and angle theta between them. Here, you may be observing two vectors A and B. The angle between the vectors is theta. R is their resultant, and R is drawn according to the law of parallelogram of addition of two vectors, as already explained to you. OR, which is vector R, is the resultant of the vectors A and P. Okay, so let us complete this parallelogram O, P, R and Q. Okay, now let this resultant R is making an angle alpha with the vector A. Draw perpendicular from the arrowhead of this resultant vector R to the base OP, which intersects the base, extended base, at point D. Means RD is perpendicular to OD. Okay, angle RPD will be angle theta, corresponding angle, you know, vector corresponding angle. So now we will see that RD will be RD will be B sin theta, because PR will be equal to OQ, which is the magnitude of vector B. So RD will be B sin theta and PD will be B cos theta. Okay, now in right angle triangle ODR, which is quite visible, OR square, Pythagoras theorem, OR square is equal to OD square plus RD square. OR is magnitude of vector R, so R square is equal to OD. OD will be OP plus PD. OP is A and PD is B cos theta. So OD will be A plus B cos theta whole square. Okay, and RD, which is equal to B sin theta, will be B sin theta square. So OD square plus RD square will be A plus B cos square theta plus B sin square theta. Now opening this two, we will get R square is equal to A square. A plus B cos theta whole square will be A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta and plus B square sin square theta. Now B square cos square theta plus B square sin square theta. Take B square as common. You will get B square cos square theta plus sin square theta, because cos square theta plus sin square theta is an identity which is equal to 1. Therefore, this expression will become A square plus B square plus 2AB cos theta finally. Okay, R square is equal to A square plus 2AB cos theta plus B square. Clear? Now the magnitude of R is under root A square plus B square plus 2AB cos theta. Law of cosines. This is called law of cosines. Now see, the direction of R is, actually when we say about the direction of R, it means we have to give some angle, tan alpha. Now calculate tan alpha from the triangle. Tan alpha is perpendicular upon base, perpendicular is B sin theta and base is A plus B cos theta. So tan alpha is equal to B sin theta upon A plus B cos theta. Here alpha is the angle which is the resultant is making with the direction of vector A. Okay, and R upon sin theta is equal to A upon sin beta is equal to B upon sin alpha, where beta is the angle which the resultant is making with the direction of vector B. The last one is called law of sines, है ना. लास्ट वाला जो है उसको साइन रूल बोलते हैं. R upon sin theta, R upon sin theta is equal to A upon sin beta is equal to B upon sin alpha. ठीक है, साइन रूल जो है आपने पढ़ा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. ठीक, कि किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और
और साइड्स और उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ लॉ ऑफ साइंस भी जो है वो एप्लीकेबल है। ओके ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ सी, जैसे हम लोग स्केलर्स का प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, उस तरह से हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन उस तरह से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इफ यू मल्टीप्लाई 5 to 4 वी विल गेट 20, है ना। 5 भी स्केलर है, 4 भी स्केलर है, 20 भी स्केलर है। लेकिन वेक्टर्स का प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है। वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट एक वेक्टर भी हो सकता है और एक स्केलर भी हो सकता है। तो कब रिजल्टेंट वेक्टर होगा, कब रिजल्टेंट स्केलर होगा, दिस डिपेंड्स ऑन द मेथड बाय विच वी आर मल्टीप्लाइंग द टू वेक्टर्स। ठीक है, ये उस मेथड पे डिपेंड करता है जिससे हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द रिजल्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट, there are two types of multiplication of vectors. One is called cross product and other is called dot product or scalar product. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो वेक्टर्स का डॉट किया जाता है, व्हेन उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है, तो उसमें जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर आता है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हम डॉट या स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। इन डॉट प्रोडक्ट द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट and the resultant of the product is scalar value. ठीक है, for example, work is defined as the product of force and displacement. Now see, force is a vector quantity, displacement is also a vector quantity, and work is also a scalar quantity. Work is a scalar quantity, but work is defined as the product of force and displacement. तो क्या होगा कि हम जो है इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो स्केलर आए। तो यहाँ पर हमको डॉट लेना होगा। ठीक है, हियर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर एंड वर्क इज अ स्केलर। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। In this way, the dot or scalar product is given by a dot b is equal to mod a mod b cos theta. दिस इज हाउ द डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड। दो वेक्टर्स का जो डॉट होता है उसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि दो वेक्टर्स अगर ए और बी हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बराबर होगा ए के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, एंगल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फैशन में लेना है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है ए और बी के बीच का। ठीक है, ए डॉट बी है तो ए से बी की तरफ को जब जाएंगे हम तो जो एंगल बनेगा दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है, रोटेशन जो होता है, आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि एक वेक्टर लेते हैं उसको रोटेट करते हैं ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, और जो जो एंगल वो बनाता जाता है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो ए और बी के बीच का एक्यूट एंगल है एक्चुअली, जिसको एंटी क्लॉकवाइज मैनर में लिया गया है। ठीक, चलिए एंड cos थीटा इज a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। ठीक है, जो दो लाइन ड्रॉ की गई है ना वेक्टर के बगल में, वो रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर ए का मॉड्यूलस लिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड लिया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Dot product results in a scalar value. Dot product of scalar product, dot product or scalar product is commutative, means a dot b is equal to b dot a. Dot product is distributive. Distributive means a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c. I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k and it is equal to 1. I dot j, j dot k dot I is equal to 0. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग एक्स वाई और जेड एक्सेस आई जे के, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है,
है ना, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब आप एक यूनिट वेक्टर का दूसरे से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई का जे से लेंगे, तो आई जे के बीच एंगल 90 है, तो cos 90 जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए आई डॉट जे 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट 1 होता है और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट 0 होता है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, ए का बी के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसको कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है। इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, दैट इज बी डॉट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए। तो कहने का मतलब अब ये रूल हो गया, अब ये रूल हो गया। इस रूल का मतलब ये, अब इसको ध्यान से देखिएगा कि किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है उस डायरेक्शन में पहले यूनिट वेक्टर पता करिए, ठीक है, और उस यूनिट वेक्टर से उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, हो गया जो है उस डायरेक्शन में उस वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है कि नहीं। If A is equal to AXI plus AYJ plus AZK and B is equal to BXI, BYJ, BZK, then A का A से ही डॉट लेंगे तो क्या है, क्या आएगा, A का जब A से ही डॉट लेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा, AX इंटू AX प्लस AY इंटू AY प्लस AZ इंटू AZ। आई का आई से डॉट होगा 1 हो जाएगा, जे का जे से डॉट होगा 1 हो जाएगा, के का के से डॉट होगा 1 हो जाएगा, तो ए एक्स इंटू ए एक्स हो जाएगा प्लस ए वाई इंटू ए वाई प्लस ए जेड इंटू ए जेड, या ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए कॉस 0, तो मॉड ए मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, और इधर आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरह से बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस कैसे लिया जाएगा, है ना, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करने का दूसरा तरीका है वेक्टर्स को। ठीक है। इन वेक्टर प्रोडक्ट द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, द रिजल्ट of the product is a vector. Torque is defined as the product of force and moment arm. Torque जो होता है वो फोर्स और मोमेंट आर्म उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हेंस फोर्स, मोमेंट आर्म एंड टॉर्क ऑल आर वेक्टर्स। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। दो वेक्टर्स लीजिए ए और बी जिनके बीच में एंगल थीटा हो, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे आप वो देखिए। ये देखिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दिया जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर ईटा। अब आप ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी एक वेक्टर है ना, तो इसमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा, और दूसरी चीज आप जानते हैं कि डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए क्रॉस बी जो होगा ये एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट वेक्टर होगा, तो यहाँ पे जो एन कैप लिखा हुआ है वो यूनिट वेक्टर है, और मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, where n cap is the unit vector along a direction which is perpendicular to the plane containing a and b। ए और बी दो वेक्टर्स जिस प्लेन में हैं, जैसे आपका मोबाइल या लैपटॉप का जो प्लेन है, जो स्क्रीन है, उसमें ए और बी हैं, तो ए क्रॉस बी जो होगा मोबाइल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस मोबाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है। अब परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती है, एक अंदर की तरफ हो सकता है, एक बाहर की तरफ हो सकता है। तो अंदर होगा कि बाहर होगा ये डिपेंड करेगा
राइट हैंड स्क्रू रूल से, ये डिसाइड होगा, सॉरी, राइट हैंड स्क्रू रूल से। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है कि एक राइट हैंडेड स्क्रू, स्क्रू मतलब जो आप घरों में लगाते हैं, दीवालों में, दरवाजों में, वो स्क्रू, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट करते हैं ना, हाँ वो वाला स्क्रू, वही स्क्रू, सपोज करिए कि वो स्क्रू रखा हुआ है जहां पे दोनों वेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर, ठीक है। अब ए क्रॉस बी है, तो उस स्क्रू को ए से बी की तरफ को रोटेट करिए, स्क्रू को हम क्या करेंगे, ए से बी की तरफ को रोटेट करेंगे। अब ए से बी की तरफ को रोटेट करने पर स्क्रू की जो टिप है वो जिधर मूव करेगी ए क्रॉस बी उधर ही होगा, इसको कहते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, ए से बी की तरफ को जब आप रोटेट करेंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, उसकी टिप अंदर की तरफ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ द मोबाइल एंड इनवर्ड, ठीक है। अगर वही ए नीचे होता और वेक्टर बी ऊपर होता, ए और बी की डायरेक्शन पोजीशन चेंज इंटरचेंज कर दें, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये है कि अपने दाहिने हाथ की जो पाम है, हथेली है, उसको आप मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखिए और अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ मोड़िए, ए से बी की तरफ मोड़िए। मोड़ने पर देखेंगे अंगूठा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा उंगलियों के, तो अंगूठा बताएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो है अपने पाम को जब आप ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि मोबाइल का प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर रखिए और ए से बी की तरफ उंगलियां मोड़िए, तो अंगूठा परपेंडिकुलरली इनवर्ड जो है पॉइंट करेगा, सो ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक है। तो एक चीज आपको पता चल गई कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। साइन थीटा इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। A cross B means the vector A is rotated towards B and its effect is taken on B, ठीक है। A को B की तरफ रोटेट किया गया और इसका इफेक्ट B पर लिया गया। By right-handed thumb rule or Maxwell's cork screw rule, Maxwell's cork screw rule बोलते हैं उसको, या right-handed screw rule भी बोलते हैं, ठीक है। The direction of the resultant in this case is perpendicular and into the plane of the diagram, ठीक है। B cross A means the vector B is rotated towards A and its effect is taken on A, ठीक है। The resultant in this case is perpendicular and emerging out of the plane of the diagram, ठीक है। Closing and opening of the tap is the best example of this. Properties of cross product. Cross product की properties क्या है? Vector product results in a vector. क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इंस्टेड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होती है अगर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, 180 डिग्री रोटेट कर जाती है डायरेक्शन, तो इसीलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। ये कम्यूटेटिव नहीं है। सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस होता है वो जीरो होता है। वहां पर क्या था, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट 1 आता था, यहाँ 0 आएगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होगा, ठीक है, ओके। और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस जो है वहां पर डॉट जो है 0 आता था, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आई और जे का क्रॉस के आएगा, जे और के का क्रॉस आई आएगा, के और आई का क्रॉस जे आएगा। इसको ध्यान से रखिएगा। एक सर्कल बना लीजिए, उस पे एक पॉइंट पर आई लिख लीजिए, दूसरे पर जे लिख लीजिए, तीसरे पर के लिख लीजिए, ठीक है। और घड़ी के सुई के चलने की डायरेक्शन में चलिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, तो आई के बाद क्या आता है, जे, जे के बाद क्या आता है, के, ओके। व्हेन यू मूव इन क्लॉकवाइज मैनर, the cross product of two consecutive unit vectors will be the third vector, ठीक है। तो i क्रॉस j क्या हो जाएगा, k, j क्रॉस k क्या हो जाएगा, i,
k क्रॉस i क्या हो जाएगा, j, ठीक है। और यही अगर उल्टा कर देंगे, j क्रॉस i कर देंगे तो माइनस k क्रॉस j कर देंगे तो माइनस i क्रॉस k कर देंगे तो माइनस j, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं a और b, जिनको हम i j और k के फॉर्म में लिख रहे हैं, axi प्लस ayj प्लस az के, b को लिख रहे हैं bxi प्लस byj प्लस bz के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो a क्रॉस b जो होगा ये होगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जानते होंगे, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको ओपन करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो ये आ जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप, ठीक है, माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के, ठीक है। कैप थोड़ा दूर जा रहा है, ये मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिस्प्ले ठीक से नहीं हो रहा है। ये जो कैप लगा है ये के पर लगा है, कैप्स जो लगे हैं ये आई जे और के पर लगे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर अभी खत्म हो गया वेक्टर का आपका। कल से हम पढ़ाएंगे मोशन इन अ प्लेन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव करता है तो फिर उसका उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके।